Good morning, all of you. Good morning. We are starting the exercise, next exercise. That one. The formulas I have told you earlier. Okay. Now you have to form the equation. Question number 1. Write the equation for the x-axis and y-axis. So equation for x-axis, what is the condition of x-axis? We always found on x-axis the value of y is equal to 0. So y is equal to 0 is the equation of x-axis. ठीक है? x-axis की equation में ठीक है जो कंडीशन है उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन. Equation of x-axis is y is equal to 0. Equation of x-axis y-axis is x is equal to 0. If you want to find out by using the formula, the slope of this equation is, है ना? Equation of formula we have told you. Just I am writing the formulas. Okay. There are so many formulas for satisfying this equation. Y minus y1 m x minus x1. The slope of this line, if we are calculating the slope of this line, this is making angle 0 with x-axis. X-axis is making 0 angle with the x-axis. So m is equal to 0. It is passing through 0, 0. The equation will be y minus y1. The value of m0, x minus x1. If we multiply with 0, we will get the y is equal to 0. This is the equation of x-axis. In the same way, the slope of the line is the slope of the line x-axis. Slope of x-axis. In the same way, the slope of y-axis will be m is equal to tan theta, यानी कि 1/0. So y minus y1 equal to 1/0 x minus x1. So y1 or x1 is 0. So y into 0 x minus 0. This becomes x is equal to 0. As I told you, the equation of y-axis is x is equal to 0 and equation of x-axis is equal to y equal to 0. So you can remember this one. You can write directly also. I have told by using the formula. It is better you use the formula than you try to learn it. Directly you can use wherever you want to use it. The equation of x-axis equal to 0, equation of y-axis x is equal to 0. This is the first question of exercise 10.2. ठीक है. Question number 2. Passing through the point -4, 3 and slope कितना given है 1/2. Slope है m is equal to 1/2. Passing through -4, 3.
The line is passing through minus 4 3. The slope is given 1 upon 2. So you have to put these values in this equation. Y minus y1. Y1 is minus 3. 1 upon 2 x minus x1. It becomes plus 4. Y minus y1 equal to mx minus x1. You cross multiply, you will get 2y minus 6 is equal to x plus 4. Now the equation is just 6 is all the time in here. It becomes x minus 2y plus tan equal to 0. Okay, you can shift the right side also into these terms into left side also, these terms to the right side also. It depends on you. You know? This is the solution of the equation. We have formed the equation which pass through the minus 4 comma 3 and making the slope 1 upon 2. Come to the next question, question number 3rd. Passing through 0, 0 with slope n. The line is passing through 0, 0 with slope n. So it is passing through 0, 0. Our slope we are using n. So y minus y1 equal to mx minus x1. The equation will become y is equal to mx. If a line is passed through the origin and making the slope m, the equation becomes y is equal to mx. So I have explained you these three. So first question you can write y is equal to either you can how you can I have told that one right hand side. Okay, the line is passing through the point 0, 0, same way it is also passing through 0, 0. The slope is here and but here the slope is 0. So here I have taken 0. Okay, the equation becomes y is equal to 0. In case of y-axis, the slope of the slope we calculate m is equal to tan theta. For finding the slope, our formula is m is equal to tan theta. M is equal to tan theta is slope m equal to tan theta. If we take theta is equal to 90 degrees, okay, so it becomes 1 upon 0. So it becomes x 1 upon 0 you cross multiply. It is also passing through 0, 0. Okay, we get x is equal to 0. This is the equation, okay, of x-axis and y-axis in case the slope की वैल्यू जो होती है यहाँ पर 0 हो जाती है, यहाँ पर 1 upon 0 हो जाती है. जहाँ पर we have the point is given minus comma 3, we have taken y minus y1, x minus x1 और m this. In the same way 2y minus 6 है ना, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया यहाँ पर. यहाँ तो ये सभी का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इन सबका जो मेथड है लगभग एक जैसा है. हमने यही फॉर्मूला यूज किया है. ठीक है, स्लोप पहले वाले क्वेश्चन में स्लोप अपने आइडिया से लेना पड़ा, इसे आप याद भी रख सकते हो, है ना. जो कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने कंडीशन से क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है. इक्वेशन क्या होती है जो हमेशा सेटिस्फाई करती है गिवन कंडीशन. तो यहाँ पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, उसमें एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगी. एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा, इसमें इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी. अदरवाइज यू कैन फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ठीक है.
देखो बेटा, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 75 डिग्री, और जो लाइन है वो पास हो रही है 2,2√3। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास यही यूज करना है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही फॉर्मूला। लेकिन एम की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने ये एंगल दे दिया, एम इज इक्वल टू tan 70। तो tan 75 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो tan 75 की वैल्यू हमें वैसे तो लर्न नहीं है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं tan 45 प्लस 36। यहाँ कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। तो tan 45 tan a प्लस tan b tan 30 डिग्री 1 अपॉन tan 45 tan 30। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b माइनस tan 30 माइनस 1 ऐसे में ये √3 प्लस और √3 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ होल स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 2√3 एक्स माइनस 2। यहाँ पर आया y माइनस के 2, ये 4 प्लस 3 होगी, डिवाइड करिए 2 प्लस एक्स माइनस के 2। चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस जाएगा, ये √3x माइनस का 2√3 होगा, माइनस का 2 माइनस 2√3 कैंसिल हो गया। ये है आपका आंसर y इक्वल टू 2x प्लस √3x माइनस के 4। 4 को इधर ले आते हैं, y को इधर लाते हैं, प्लस √3x एक्स प्लस, यहाँ मैं कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 एक्स। ठीक है, और ये माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। y को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, 4 को करके करते हैं। अब आप ये देखो कि इसमें क्या ऐसी जो मुश्किल लग रही है आपको, है ना। क्वेश्चन लेंथी जरूर है ना, लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन इसकी कोई खास चीज कुछ नहीं। इसमें हमने क्या है, जो हमारा फॉर्म था, फॉर्मूले के अंदर जैसे x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, तो x1 y1 को हमने वो पॉइंट रख दिया। बस स्लोप निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से करना पड़ा। तो स्लोप के लिए उन्होंने थीटा की वैल्यू जो 75 दी थी, उसको हम डायरेक्टली, हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता थी, हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया। tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके हमने उसकी वैल्यू करने के बाद, ठीक है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें बस एक्स और वाई को सेपरेटली लिखना है, उसी ध्यान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन में है intersecting the x-axis a distance of 3 units to the left of the origin with slope minus. Intersecting the x to the left of the origin. यहाँ स्लोप जो गिवन है माइनस एग्जाम कहाँ से कैसे पास हो रही है एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए एक्स एक्सिस एंड की वैल्यू माइनस की दी यहाँ फिगर से बनता नहीं ठीक है उसकी वैल्यू फाइंड तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ठीक है यहाँ पर पॉइंट है 3,0 ये तो लोग कितना ले लेंगे ले लेंगे ठीक है तो इक्वेशन क्या है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स यहाँ पर हमने y1 यूज किया है y माइनस के ना y1 है आपका 0 और इनकी वैल्यू कितनी है माइनस इक्वेशन अब आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन में जो है ना हमने सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में से दिए मेथड लगभग क्या है और पास पॉइंट और ठीक है उसके बाद आप फॉर्म में डायरेक्टली आप लगा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है intersecting the y-axis at a distance 2 units above the origin and making an angle 30 degrees with the positive direction of x-axis. ये इस तरीके से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है और दिस इज 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो बनेगा और 2 यूनिट अबव द ओरिजिन से पास हो रही है इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा ये कोऑर्डिनेट होगा 0 2 ठीक है intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin unit plus origin. Direction of the x-axis से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 के एंगल बन रहा है ऐसा लेंगे तो ऑप्टिक एंगल बन जाएगा हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को मेजर करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं y माइनस वाई वन एम एक्स डायरेक्ट उन्होंने स्लोप दे दिया था यहाँ पर उन्होंने एंगल दे दिया था एंगल क्या है यहाँ पर हम स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि tan 30 की वैल्यू हमें पता है ठीक है ये हमने 10th क्लास से पता है और 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री कर लिया यहाँ से आप डायरेक्टली खुद कर सकते हो
दो लाइन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, passing through the point -1, -1 और 2, -2, इन दो पॉइंट से हमें पासिंग करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल। तो हमने आपको जो फॉर्मूले बताए थे इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2.4, है ना, 2 पॉइंट से इक्वेशन का इसका फॉर्मूला था y - y1 y2 y x2 और यहाँ पर कितना है x - x। ये है अगर उन 2 पॉइंट के फॉर्म में हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, तो y - y1 y1 इसको लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, किसी को भी ले सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी ले सकते हैं। y - y1 y2 - y1 प्लस हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए y - 1 -5/3 x अब तो -3 -5 तो रहेगा हम 5 + 3y इक्वल टू -के ये फॉर्मूला हमने ये यूज किया, वो फॉर्मूला यूज y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x। ये 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट दिए हैं, जब भी कभी 2 पॉइंट दिए होंगे तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप ऐसा भी जैसे मैंने कहा कि x1 y1 अगर हम किसी को भी ले सकते हैं, अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ से भी इसको भी x1 y1 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। 2 - 4 तो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। अब आप देखो y - y1 इक्वल टू 1 - y2 - y1, हम इसको y2 लिया है, 1 x - 2 हो गया x - x। x1 कितना है, x1 कितना है आपका, वो 2, ठीक है। ये हुआ y - 2 6 अपॉन माइनस -3 प्लस 5x + 3y, tan को हम जो है इधर लेके आएंगे तो 16 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ 3y माइनस के 3 दिया हमने, माइनस के 5x माइनस का 5 वैल्यू अलग से आ रही है, 5x प्लस 3 है 3 माइनस के 2 y माइनस के y1 y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 x माइनस के x1 यहाँ माइनस के 5 3y माइनस के 3 माइनस 5x माइनस 4 माइनस के 5 है 5x को हम इधर ले आए 5x प्लस 3y 3 को इधर ले जाएंगे अगर हम तो माइनस का 2 होगा। फिर यहाँ पर आते हैं अगर हम y माइनस के y हमने चेंज कर लिया 2 कोमा माइनस 4 माइनस 1 कोमा 1 लिया है ना, एक्चुअल y1 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, y माइनस के y1 y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाई x2 तो y2 माइनस x2 जो ले रहा है हमने माइनस माइनस 3y प्लस y माइनस के 10 माइनस के y सॉरी दोबारा देखो